Now we are moving forward with another theory that is all about Ferdinand theory of semiotics. As we have discussed earlier, कि भाई what is meant by semiotics? Semiotics are considered as study of signs and symbols. Study of signs and symbols. यानी कि आप signs and symbols की study conduct कर रहे हो, ठीक है? According to the Ferdinand's theory of semiotics, actually there are two levels of the meaning. Related to sign and symbol, यानी कि किसी भी साइन और सिंबल को स्टडी करने के देर आर टू लेवल्स ऑफ द मीनिंग. सही है. नंबर वन इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेवल is considered as signifier. The first level of the meaning is considered as signifier. The first level of meaning is considered as signifier. Signifier means what it is. यानी कि वो सामने वाला जो symbol है वो क्या है. Got it? Let's suppose if there is a flag, like if there is a red flag. Red flag is a symbol of what? Let's suppose signifier is means, for example, I'm going to say there is a red flag. Red flag is considered as a signifier. Okay. And afterwards, there is a second level of the meaning. We used to call it signified. Signified means what it means for. We need to know about the meaning of the sign or symbol. Am I right? This is all about the contextual meaning of sign and symbol. Red flag is a sign and symbol of what? Example, हमारा signifier था red flag. Red flag is a sign and symbol of what? Revolution. दुनिया में जितनी भी revolutionary movements होती हैं, they are having the red flags. Got it? Like if you talk about socialism, if you talk about the feminism also, Marxist feminists particularly, they used to have. So if you talk about the red flag could be the sign of revolution, am I right? So this is all about the meaning of any sign and symbol, am I right? If there is a sign of and symbol of something like Freemasons or Illuminati, okay, so आप कहोगे यार this is a evil eye आप कह लो या satanic symbols are there. So automatically what it means कि भाई एक चीज़ आपने देख ली, that is all about the first level of the meaning which we used to call a signifier. ठीक है. The second level of the meaning is considered as a signified. That means the contextual meaning, the detailed meaning of that particular scenario. So in our media text, we are having so many signs and symbols. Am I right? In media text, if we talk about any sort of media text, there are so many signs and symbols. And those signs and symbols may build the connotations, may build the meanings. They are having the hidden meanings. Am I right? In textual analysis, we need to talk about those hidden meanings. Am I right? Each and every sign and symbol is having some sort of hidden meaning. And for textual analysis, we need to identify, we need to discuss about those hidden meanings. कि भाई ये sign दिखाया गया है, that shows this particular thing. Let's suppose one of my student used to build a meaning out of it. एक textual analysis मैंने दिखाया. वो कौन से फिल्म का था? The Pursuit of Happiness. बड़ी मज़े की फिल्म है, ज़रूर देखिएगा. Pursuit of Happiness. उसके अंदर मैंने उसका एक क्लिप दिखाया textual analysis के अंदर, और एक बच्चे ने बड़ी मज़े की साइन और सिंबल निकाला. दैट वाज ऑल अबाउट, उसने
रीजनल आइडेंटिटी निकाली विद द हेल्प ऑफ नंबर प्लेट. उस फिल्म के अंदर एक नंबर प्लेट आती है, उस नंबर प्लेट के थ्रू उसने कहा यार दिस इज अ कैलिफोर्नियन स्टोरी. गॉट इट? So what it means कि these are the signs and symbols which may represent a lot of meanings out of it. ठीक है? Actually, for textual analysis, we need to build the representations. We need to build the. We need to talk about the identities. Got it? So with the help of signs and symbols, we can build a lot of meanings out of it. We can build a lot of connotations out of it. We can build a lot of contextual meanings. Got it? So. For media textual analysis, for if we talk about the film analysis, this is very important to study any sign and symbol and build connotations against of it. Okay. Now I am moving forward with another theory, which is one of the most important theory and one of the most usable theory you can say in textual analysis. This is all about the Roland Barthes theory of denotation and connotation. ठीक है, theory of denotation and connotation किस तरह से build होती है, we need to understand this thing. ठीक है, first we need to understand the denotation and connotation meanings and we need to understand everything out of it. देखो, denotation refers to direct meaning. Denotation refers to the direct meaning, यानी कि किसी भी चीज़ की direct meaning को हम लोग क्या कहते हैं? Denotation. It means what it is. यानी कि जो normally ये जो theory है ये link होती है हमारे technical codes के साथ. All the technical codes are the denotations. All the technical codes are the denotations. यानी कि denotations में जो कुछ भी होता है, जो भी technical codes होते हैं, like camera, sound, edit, mise-en-scene, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा? आपकी टेक्निकल कोड्स में फॉल इन करती हैं. सही है? एडिट सही है. अब ये सारी चीज़ अब ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड डेनोटेशंस. क्या होती हैं बेटा? डेनोटेशंस. ठीक है, अब ये डेनोटेशंस एक्चुअल में क्या बिल्ड करती हैं बेटा? दीज डेनोटेशंस लीड्स टू कॉनोटेशन. D for denotation, D for direct meaning, C for connotation, C for connotation, C for contextual meaning. अब ये जो contextual meaning है, we need to understand this contextual meaning. ठीक है, ये contextual meaning क्या होती है? अब ये जो contextual meaning होती हैं, each and every technical code has some sort of contextual meaning. These contextual meaning may have representations. These contextual meanings may have representation of what? Class and status हो सकता है, gender representations हो सकती हैं, ethnic representations हो सकती हैं, एज रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, वो तो क्या क्लास एंड स्टेटस में आ जाएगा. इसके अलावा एबिलिटी डिसेबिलिटी हो सकती है, एथनिसिटी के साथ रीजनल आइडेंटिटी भी आ जाता है, किसी किस रीजन के साथ ताल्लुक रखते हैं. इसके अलावा सेक्सुअलिटी आ सकती है, बाइनरी नॉन बाइनरी कोड्स की बात आ सकती है. सो ऑटोमेटिकली हम क्या कह रहे हैं कि these representations are having, these connotations are having the representations, these connotations are having representations. Am I right? यानी कि एक्चुअल में जो टेक्निकल कोड्स होंगे वो आपकी रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज, रिप्रेजेंटेशन को शो ऑफ कर रहे होंगे. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपके सामने
कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता हूँ. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. देखिए जी, मीडिया टेक्स्ट यानी कि कोई भी फिल्म का क्लिप या कोई भी मीडिया टेक्स्ट एक्चुअल में एक तरफ होंगे उसके टेक्निकल कोड्स, सही है, एंड यू गाइज आर द एनालिस्ट फॉर द मीडिया टेक्स्ट, तो यू नीड टू एनालाइज दीज टेक्निकल कोड्स, ठीक है. एंड दीज टेक्निकल कोड्स may have what these technical codes may lead towards representations. किसकी तरफ जाएगा ये representations को analyze करेगा. अच्छा, अब देखो technical codes क्या हैं बेटा. These are the denotation and representations are the connotations. Now we are moving forward with the representation part. ठीक है, हम बहुत डिटेल में जाएंगे. एक टिप एंड ट्रिक बता रहा हूँ. किसी भी रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करने का ईजीएस्ट फॉर्मूला ये है, आप उसके रोल को आइडेंटिफाई करो. किसको आइडेंटिफाई करो? रोल. पहले मैं आपको स्टीरियोटिपिकल समझाऊंगा, फिर मैं नॉन स्टीरियोटिपिकल पे आऊँगा, ठीक है, यानी कन्वेंशनल, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल गो फॉर नॉन कन्वेंशनल, ठीक है. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेशंस. इसमें हमारे पास एक अपर क्लास आ जाती है, फिर हमारे पास मिडिल क्लास आ जाती है, एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग वर्किंग क्लास और द लोअर क्लास. ठीक है जी. अब जरा फोकस समझिएगा. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द अपर क्लास, व्हाट रोल दे यूज्ड टू परफॉर्म? यूजुअली दे आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस एलीट और दे आर लैंडलॉर्ड्स. स्टीरियोटिपिकली आज के दौर में मिलेनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी आप दिखा सकते हो, बिजनेस एलीट में आ जाएंगे. आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग मिडिल क्लास. दे आर एजुकेटेड पीपल, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स. ठीक है. फिर आगे आपकी वर्किंग क्लास. ठीक है. अब वर्किंग क्लास में क्या होता है? देयर कुड बी मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्कफोर्स. अब मैनुअल वर्कफोर्स क्या होती है? जो ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे होते, ठीक है, और नॉन मैनुअल कौन से होते हैं बेटा? जो क्लरिकल जॉब्स कर रहे होते. दे आर हैविंग द सिमिलर क्लास स्ट्रक्चर. ठीक है. अब देखो, there is a direct impact on their culture also. Identify the culture. There are so many signs and symbols of the culture. Okay. Like if you talk about the business elite, they are having the elite culture. You can use these terms, or high culture of the society. How to identify this culture? Like you will find the expensive paintings, luxury settings, furnishings. Am I right? So they are having extremely elite culture. समझ में आई बात? Like they are having some sort of, we can say they are having cultural capital. There is a term, cultural capital. उनको उठने की तमीज़ होगी, बैठने की तमीज़ होगी. अच्छा, सबसे ज़्यादा चीज़ जो cultural capital आइडेंटिफाई होता है, we used to identify the cultural capital with non-verbal codes. ठीक है, non-verbal communication भी जिसको हम कहते हैं. इसके अलावा कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स. ठीक है. आप किसी भी वर्किंग क्लास के बंदे को कोई बुके ले जाते हुए कहीं पे नहीं देखोगे. प्रॉप इज अ बुके इज अ प्रॉप. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द टाइम with the help of mise-en-scene code, you use to identify the cultural capital of a character. ये character cultural capital कितना retain रखता है. ठीक है. The middle class used to follow the popular culture of the society. Designer clothings होती हैं elite culture के पास. Popular culture जो होता है, they are the representative of mass consumption. आप मिडिल क्लास को दिखाओगे मैकडॉनल्ड्स के अंदर
नॉर्मल कैफेज के अंदर बैठा हुआ, ठीक है। एलीट को आप दिखाओगे एलीट रेस्टोरेंट्स में बैठा हुआ, सही तरीके से खाना खाएगा। मैस कंजम्पशन पैटर्न क्या होते हैं, जो आपकी आम आदमी नॉर्मल ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैस कंजम्पशन पैटर्न। क्लियर हो रही है बात, सही है। लेट्स सपोज नॉर्मल ब्रांडेड क्लोथिंग क्या पहन रहा है बंदा, दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मैनुअल एंड नॉन मैनुअल वर्कर क्लास। मैनुअल वर्कर्स, दे आर हैविंग द मैस कल्चर और द लो कल्चर ऑफ द सोसाइटी। अब लेट्स सपोज अ कैरेक्टर इज हैविंग प्री लव्ड क्लोथिंग, एक प्री लव्ड कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, यानी कि यूज कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑलरेडी, दैट शोज इज एग्जाम्पल ऑफ मैस कल्चर। एम आई राइट, ठीक है। अगेन आपकी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जो एक्सट्रैक्ट आउट होती है वो मिजन सीन कोड से बहुत ज़्यादा होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी डायरेक्टर जो होता है साउंड को भी यूज़ करता है, कभी कभी कैमरा एंगल्स को भी यूज़ करता है जस्ट टू नरेट द स्टेटस। अब ज़रा एक चीज़ समझिएगा, हाई कल्चर इज हैविंग हाई स्टेटस, the middle class is having higher than lower status, and the working class is having low status. This is so you can say it's stereotypical. This is stereotypical. As I told you sometime, producers used to support the dominant ideology, sometimes they used to oppose the dominant ideology. Am I right? If you can see the class inequality in a scene, class inequality अगर नज़र आ रही है आपको सीन के अंदर, आपको कैपिटलिज्म का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा उसमें, सही है। उसमें ऑप्रेस्ड वर्किंग क्लास नज़र आएगी, वर्किंग क्लास के रोल्स आपको बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज नज़र आएंगे और अपर क्लास डोमिनेट करती हुई नज़र आएगी। एम आई राइट। अब ऐसी कंडीशन के अंदर एवरीवन हियर ट्राई टू फोकस ओवर हियर। देखिए जी, एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जक्स अपोजिशन। क्या होता है बेटा, सही है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं और उसकी जक्स अपोजिशन होती है, क्या होती है, जक्स अपोजिशन। क्लास इनइक्वालिटी का सिनेरियो है, ठीक है। अब कैपिटलिज्म के अंदर आपकी जो अपर क्लास होगी डोमिनेट करेगी वर्किंग क्लास पे, ठीक है, ये ऑप्रेस्ड है। आप एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरी रिप्रेजेंटेशन के जक्स अपोजिशन में, यानी कि उसके अपोजिशन में लाके खड़ा कर देते हो, ठीक है। आप बोलते हो कि अपर क्लास के बंदे ने ये कपड़े पहने हुए, वर्किंग क्लास के बंदे ने उसके अपोजिट कपड़े पहने हुए। इट्स मोर अबाउट टू बिल्डिंग द अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्डिंग द अपोनेंट्स। एम आई राइट। upper class versus lower class, male versus female, minority versus majority, white versus black. Am I right? So the whole idea of creating representation is to create juxtapositions. Am I right? If we talk about the Citizen Khan clip, ठीक है, there is a opposite gender roles, opposite ethnic ideas, juxtaposition. This is called juxtaposition because every narrative in the world is having some sort of conflict. Without the conflict, there is no narrative. Without the conflict, there is no narrative. To build that conflict, we need juxtaposition. We need juxtapositions. Now we are going forward with the gender representations. Okay? As I told you before, we are talking about the stereotypical conventional ideas about the gender, class, ethnicity, and age, and then afterward we'll talk about a non-conventional one, the non-binary one also. So if we move forward, we need to understand this thing. There is something like gender, and if we talk about the binary explanation of gender, binary का मतलब क्या होता है? We are explaining gender with only two gender elements. ठीक है? Number one is male, number two is female. ठीक है? If we talk about stereotypical ideas, okay? The male roles are mostly linked with the instrumental role, or you can say economic role, and this thing lead towards what?
This is also called hegemonic masculinity. Hegemonic का मतलब होता है controlling, getting control and getting consent of the led. ठीक है, hegemonic masculinity, and this is led towards the masculine culture, shows the unemotional side of the male, having objectivity in their mind. So if we talk about masculine culture, so stereotypically having high status. अब ये जो मैस्कुलिन कल्चर होता है, जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होती है, ये मेल को बहुत अनइमोशनल दिखाती है, पावरफुल दिखाती है. ठीक है, वो कैसे ना स्टीरियोटाइपिकली मर्द को दर्द नहीं होता. ठीक है, तो दीज आर द आइडियाज जो कि सोसाइटी में कन्वेंशनली एग्जिस्ट करते हैं. एनी मीडिया कंटेंट हैविंग द स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज और बेस, सो वो मेल को उसी तरीके से दिखाएंगे. क्लियर हो गई बात. ऑन दी अदर हैंड, जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, सो फीमेल्स आर लिंक विद एक्सप्रेसिव रोल, जिसको हम इमोशनल रोल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको डोमेस्टिक रोल कहते हैं. अब ये जो डोमेस्टिक रोल है, देखो ऑटोमेटिकली जो बंदा जिसके पास पैसे होंगे, ही विल बी द कंट्रोलर ऑफ द फैमिली. ठीक है, और अनदर पर्सन इज गोइंग टू फॉलो हिम. अब अगर हम सिटीजन खान वाली क्लिप की एग्जांपल ले लें, तो उसमें क्या है कि बंदा पागलों की तरह बहस कर रहा है घर के अंदर, और बंदी उसको बोले जा रही है कि वी आर मेकिंग अ पार्टी, वी आर मेकिंग अ केक एंड दिस एंड दैट, गेटिंग द, वो उसको प्लीज करने की कोशिश कर रही है. व्हाट इट शोज, इसको हम कहते हैं बेटा एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी. क्या कहते हैं बेटा? कि भाई फीमेल इज शोइंग देम हरसेल्फ एज इमोशनल एम्पैथी. ठीक है, फीमेल्स के साथ एम्पैथी लगा हुआ होता है. ठीक है, यानी कि आप कुछ भी हो जाए वो उस सिनेरियो में इमोशनली डील करेंगी. ठीक है, फेमिनिन कल्चर दिखाया जाता है. फेमिनिन कल्चर को काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी दिखाया जाता है. किस पे दिखाया जाता है? डिपेंडेंट भी दिखाया जाता है. लो स्टेटस अलॉट किया जाता है स्टीरियोटिपिकली, यानी कि रोना आएगा तो फीमेल को आएगा. ठीक है, अब बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान के अंदर आ रहे होते हैं, वो यही इन्हीं स्टीरियोटिपिकल ग्राउंड्स पे चल रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यानी कि अब देखो इसकी बहुत टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ. इफ़ दे आर शोइंग अ फीमेल वेटिंग फॉर मैरिज, सही है, इट मीन्स कि उसको अपनी ज़िंदगी खुद से कुछ नहीं बनानी, इंडिपेंडेंटली नहीं करना, एंड शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मेल पार्टनर टू डू, वो उसकी ज़िंदगी में किस्मत का फैसला करेगा. समझ आई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अगेन अब देखो बहुत सिंपल सी बात है. इधर देखो जक्सटापोजिशन कैसे क्रिएट होंगी, इंस्ट्रूमेंटल रोल वर्सेस एक्सप्रेसिव रोल. एम आई राइट? हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी वर्सेस एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी. एक पावरफुल होगा, एक लेस पावरफुल होगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा उस चीज़ के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड जक्सटापोजिशंस. क्लियर हो रही है बात? जक्सटापोजिशन तब क्रिएट होती हैं जब एक दो चीज़ें, दो ऑपोजिट चीज़ें टकराती हैं. Most of the narratives, in fact every narrative in this world having some sort of conflict, and that conflict must be based on any juxtaposition. कोई दो different roles होंगे जिनका conflict आएगा. Clear हो रही है बात? अब जैसे हमने if we talk about Citizen Khan clip की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर उसका clip जो उसका जो conflict है वो वहाँ की मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ भी है. सही है, मेन स्ट्रीम कल्चर वैसे इमिग्रेंट कल्चर, ईस्टर्न यूरोपियंस को टॉन्ट कर रहा है. ठीक है, फिर दूसरी तरफ उसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? आपने जेंडर डिफरेंसेस भी नजर आ रहे हैं, मेल वर्सेस फीमेल, फीमेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रोल, मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल. क्लियर हो रही है बात? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ऑल क्लियर टिल नाउ? अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, सही है, सो इफ यू टॉक अबाउट एथनिसिटी. ठीक है, देखो याद रखो एथनिसिटी, इस चीज़ को हम रीजनल आइडेंटिटी भी कहते हैं, इस चीज़ को हम सोशल आइडेंटिटी भी कहते हैं, किस सोसाइटी से आपका ताल्लुक है. ठीक है, इफ वी मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, एवरीवन हियर, सो एथनिसिटी को हम लिंक करते हैं बेटा, ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू दिस, बट समझने के लिए हम इस चीज़ को कर सकते हैं. वी कैन लिंक एथनिसिटी विथ माइनॉरिटी
एंड मेजॉरिटी। ठीक है, हम माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी को लिंक करते हैं, सही है। माइनॉरिटी यूज्ड टू डू माइनर रोल्स, रिस्ट्रिक्टेड रोल्स, यानी कि उसको किसी ना किसी तरीके से ऑप्रेस किया जाएगा, सही है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोल, यानी कि वो हर काम नहीं कर सकती। मेजॉरिटी इज यूज्ड टू परफॉर्म मेजर रोल्स, इन्फ्लुएंशियल रोल्स। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली सॉरी With the minority roles that go towards the side characters of the story. साइड क्राइटेरिया, इट कुड बी, वी यूज्ड टू कॉल इट अंडर रिप्रेजेंटेशन, हम इसको अंडर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब माइनर रोल्स जो होते हैं वो एथनिक सब कल्चर्स पे बेस करते हैं। किस पे बेस करते हैं? एथनिक, यानी कि उनको मेजॉरिटी ऑफ, यानी कि मेन स्ट्रीम कल्चर का पार्ट नहीं दिखाया जाता। ठीक है, एंड द मेजर रोल्स आर लिंक्ड विद द मेन स्ट्रीम कल्चर ऑफ द सोसाइटी। अगेन याद रखिएगा, स्टीरियोटाइपिकली वी यूज्ड टू गिव देम हाई स्टेटस, Mezzanine code. Mezzanine code is a very important code to define a representation of ethnicity. Am I right? Ethnic representation. Whenever you are going to see any black, focus over any white representation. Create a juxtaposition out of it. Am I right? White versus black की जो representation होती है वो बहुत prominent representation होती है, 2 मिनट में निकल जाती है। समझ आई बात? दोनों के कल्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा लाजमी तौर पे। ठीक है, हाई स्टेटस, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं, सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रोल्स की वजह से आप एथनिक कल्चर्स में डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, वी विल बी हैविंग एज रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, एज में क्या होता है, या तो चाइल्डहुड होगा, यूथ या फिर यंग कहते हैं हम उसको, यूथ रिप्रेजेंटेशंस। वी आर हैविंग एडल्ट रिप्रेजेंटेशंस, वी आर हैविंग एल्डरली रिप्रेजेंटेशन। देखो, यूथ को आप, चाइल्डहुड को आप दिखाओगे विथ डिपेंडेंट रोल, यूथ को नॉर्मली क्वेश्चनेबल दिखाया जाता है, डिविएंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये सोसाइटी के एडल्ट रोल से अपोज करते हैं। एडल्ट को सोसाइटी के इंडिपेंडेंट रोल में दिखाया जाता है। कई मरतबा यूथ कल्चर को, डिविएंट कल्चर को ग्लोरीफाई भी किया जाता है। सही है, ग्लोरीफाई करने का मतलब है कि बताया कि भाई दिस कल्चर इज अ समथिंग, यानी कि हीरो नॉर्मली यंग दिखाया जाएगा। सही है, और उसके अब्बा होंगे एडल्ट जो उसकी हरकतों पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, एल्डरली अगेन डिपेंडेंट होता है, डिविएंट रोल। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके कल्चर के हवाले से, दे बोथ आर हैविंग सब कल्चर्स, यानी कि यूथ सब कल्चर अलग होता है, एल्डरली सब कल्चर अलग होता है। सही है, एल्डरली सब कल्चर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इनको सोसाइटी लो स्टेटस देती है। ये लोग इंडिपेंडेंट रोल वाले जो आपके एडल्ट हैं, ये सोसाइटी का मेन स्ट्रीम कल्चर ऑफ करते हैं। चाइल्डहुड और यूथ को लो स्टेटस दिया जाता है। एडल्ट इज हैविंग स्टीरियोटाइपिकली हाई स्टेटस, एल्डरली अगेन गेन द लो स्टेटस बिकॉज ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होते। समझ में आई बात? इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म नहीं करे तो इसलिए इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अब देखिए, मैंने आपके सामने एथनिसिटी और एज, क्लास, जेंडर,
ये मैंने 4 कोर रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने रख दी हैं. Now moving forward, we need to understand there are several other representations. Like if we talk about sexuality, ठीक है. So sexuality की जो representations होती हैं ये बहुत ज़्यादा visible भी होती हैं और sometimes you need to extract out with the signs and symbols. ठीक है. अब sexuality की जो core representations होती हैं या तो वो homosexual sexuality की तरफ जाएंगी और non-binary. So if you talk about non-binary explanations, ठीक है, homosexuality और non-binary. Non-binary means, अब देखो non-binary में there are so many representations in media. We need to exactly talk about which sort of identity it is. ठीक है. Let's suppose if you talk about कि भाई LGBTQ है, ठीक है, LGBTQ plus, ठीक है. This is all about non-binary entities. Everyone here in frames, in through non-verbal communication, through narrative, we need to identify the representation with the name. L stands for lesbian, G stands for gays. Lesbian means female versus female. G stands for boy versus boy, male versus male. B stands for bisexual, having interest in both genders. Okay, male is having interest towards male and female both. So if we talk about transgenders, there are two elements. There are transgenders and transsexuals. Transsexuals are having biological elements of both genders, and transsexuals are having biological element, and transgenders are having behavioral elements, hormonal elements. ठीक है. And queers, the queers are having inclined towards another gender. Okay. So and the plus means there are so many other genders, they can declare themselves whatever they want. ठीक है. So this is all about sexuality. You can create juxtaposition of sexuality with heterosexual attribute. Male versus female, female versus male. Let's suppose if there is a couple, there are two couples. One is a gay or lesbian couple, or another one is male versus female couple. And it means hetero. It means it's a juxtaposition of hetero versus homosexual binary gender codes. Got it? So this is a juxtaposition like this. Okay. And afterwards we are having another representation of ability and disability. ये तो बहुत easy है. Normally हम इसको props के through analyze करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन NVC जिसको हम कहते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैरेक्टर जो है इसका इंक्लाइन जो है ये एबिलिटी डिसेबिलिटी, जैसे ब्लाइंड, डेफ. एक्चुअली डिसेबिलिटी को स्टीरियोटाइपिकली आप डिपेंडेंट दिखाते हो. एबिलिटी डिसेबिलिटी के अंदर आप अगेन एक बंदा देख सकता है और एक बंदा ब्लाइंड है, तो ऑटोमेटिकली जो ये क्या हो गया, this is also a part of juxtapositions. Any confusion till here? Okay, so this is all about the basic idea of representations out of it. If you talk about textual analysis, ठीक है जी, so we need to understand one very basic thing. देखिए, आपके प्रोड्यूसर ने एक मीडिया टेक्स्ट बनाया. इस मीडिया टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं टेक्निकल कोड्स, so if you talk about the technical codes, there are camera, sound, edit and mise-en-scene. ठीक हो गया जी. And whenever we need to analyze these things, हम इन technical codes को denotation भी कहते हैं. ठीक है. And afterwards, as an analyst, we need to analyze the media text. Textual analysis is all about interpretation of media text.
whenever we are going to analyze or interpret any sort of media text, we need to build representations of what. हमने representations को build करना होता है. We used to build a representation of class, gender, ethnicity, age, ability, disability. ठीक है, हो गया. Sexuality, etc. देखिए, याद रखें, number one area is all about representation, and number two is all about creating juxtaposition. Juxtaposition means what? Male versus female, minority versus majority, black versus white भी हम जिसको कह सकते हैं. ठीक है, minority versus, देखो, I am going to give you some signals. ठीक है, whenever you are going to see a female working in a kitchen, that means you are going for the stereotypical gender identities. ठीक हो गया. Male versus female, just find out the male who is working outside the family. ठीक है. Whenever you are going to see any black person or any colored individual like Asian, Desi, आप कोई भी इस तरह का बंदा हो, ठीक है, that is all about juxtaposition of ethnicity create हो जाएंगी. ठीक है. फिर आ जाओ कोई यंग बंदा हो वर्सेस एडल्ट इंडिविजुअल, और एडल्ट इंडिविजुअल की किसी एल्डरली के साथ लड़ाई चल रही है. एज बेस्ड जस्टिफिकेशन होगी. इसके बाद हम बात कर सकते हैं अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास, बिकॉज देखो एवरी नैरेटिव हैज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सही है. जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोशल आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करता है, रिप्रेजेंटेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक हो गया. So this is all about juxtaposition. ठीक है. Whenever we need to interpret any media text, we need to link it with any sort of representation and juxtaposition. एक और बार एक चीज समझा देता हूं, हमारे पास कौन सी थ्योरी किस चीज के साथ लिंक होती है. We need to understand. If we talk about the theories, first we have Stuart Hall, encoding and decoding, ठीक है जी. स्टुअर्ट हॉल, encoding and decoding, audience reception model. Active audience used to interpret the media text as per their cultural, social and economic, cultural, social and historical background. ठीक है. So sometimes they accept the narrative into preferred code, or sometimes they oppose the narrative also. Okay, so this is all about audience reception model. ठीक हो गया. How to extract, how to take example, how to use this theory. You need to think about the narrative. आपने narrative को extract out करना है. क्या करना है बेटा? narrative को extract out करना है. ठीक है जी. Afterwards, you have another theory of Ferdinand's, theory of semiotics. ये थ्योरी होती है साइन एंड सिंबल के साथ. आपने कोई साइन और सिंबल एक्सट्रैक्ट आउट करना है और उसकी कॉनोटेशंस को बिल्ड करना है. एंड आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, द रोलैंड बार्थ्स डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन थ्योरी. ये जितने भी टेक्निकल कोड्स होते हैं, all those technical codes are linked with the denotation and connotation. The direct meaning is considered as denotation, the contextual meaning is linked with the connotation. ठीक है. All the technical codes are linked with the Roland Barthes theory of denotation and connotation. ठीक है. Now we are going to start our textual analysis. Before moving forward, I just want to share you a very basic thing
This is your question number 1 of section A. आपके पास 4 टाइम्स स्क्रीनिंग होगी. क्या होगी बेटा? 4 टाइम्स. एक फिल्म को आपके सामने 4 टाइम्स रन थ्रू किया जाएगा. सही है. ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम नॉट अलाउड टू मेक नोट्स. आपको नोट्स बनाना अलाउ नहीं होगा. बट ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, ठीक है, यू आर अलाउड टू मेक नोट्स. नोट्स के कोई मार्क्स नहीं होते, बट विदाउट नोट्स यू कांट डू एनी एसे. ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए को हम कहते हैं मीडिया टेक्स्ट. ठीक है जी. You are allowed to make notes. ठीक है. This is all about 25 marks question, 50% of your theory exam. Okay. So you need to prepare. You need to get the skills how to do textual analysis. Okay. So whenever you are going for any textual analysis, first I am going for notes. सबसे पहले मैं आपको notes बनाना सिखाऊंगा कि notes को कैसे formulate किया जाता है. ठीक है. Let's suppose ये आपका पेज है. सही है. इस पेज के ऊपर सबसे पहले एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट जो फ्रंट वाला पार्ट है, इस पे आप अपने पास साइड पे लिखोगे बिग आंसर. क्या लिखोगे बेटा? बिग आंसर. अब बिग आंसर में क्या कुछ चीजें होती हैं? नंबर 1, कहानी देखोगे. फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग होगी. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग ये बिग आंसर एक्सट्रैक्ट आउट होता है. फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर पहली मर्तबा देख के आपने रिप्रेजेंटेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करना है कि विच सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दिस. अगर पहली मर्तबा में नहीं निकल रहा, कुछ आपका दिमाग नहीं चल रहा, तो सेकंड टाइम में भी कर सकते हैं. बट अपने पास प्लानिंग आपने इस तरह से रखनी है. रिप्रेजेंटेशन एंड जक्सटापोजिशन. लेट्स सपोज फिल्म देख के पता चलेगा अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास है, एबिलिटी वर्सेस डिसेबिलिटी है. दैट इज योर बिग आंसर. सही है. ये आपके और टेक्सचुअल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ऑल द टेक्निकल कोड्स आर गोइंग टू बिल्ड द कॉनोटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ बिग आंसर. ऑन द बेसिस ऑफ बिग आंसर आप अपने बिग आंसर की बेसिस के ऊपर अपनी कॉनोटेशंस को बिल्ड कर रहे होते हो. ठीक है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने कुछ नहीं करना. आपने अपने पेज को, रिमेनिंग पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. ठीक है जी. जब आप अपने पेज को, रिमेनिंग पार्ट को, पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है. होगा क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके पास 4 डिफरेंट एरियाज हो जाएंगे. ठीक है. इन दोज 4 डिफरेंट एरियाज यू नीड टू एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स. नंबर 1 इज ऑल अबाउट द कैमरा. नंबर 2 इज ऑल अबाउट साउंड. Number 3 is all about mise-en-scene. And afterwards the 4th element is all about edit. ठीक हो गया जी. एक्चुअल में you need to extract out points. ठीक है. Let's suppose आप देखोगे कैमरे में कौन से शॉट्स यूज हुए and why they are using. Am I right? ठीक है. एक्चुअल में you need to do what? Identify technical codes and reasons. दिमाग चलाओ, देखो कि भाई वो क्यों यूज कर रहा है. If a director is using 2 shot to build the connection between 2 characters, am I right? ठीक है. अब 2 shot है. अब बहुत सिंपल सी बात है. It means there must be a conversation sort of things. सही है. साउंड में let's suppose अगर कहानी के अंदर लाफ्टर आ रहा है, it means what? कि सिटकॉम है, कुछ ना कुछ चीजें बिल्ड कर रही होती. देखिए याद रखिएगा, द होल टेक्सचुअल एनालिसिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग डेनोटेशंस एंड बिल्डिंग विद द कॉनोटेशंस.
बिल्डिंग विद द कॉनोटेशंस। ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। अब लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट सिटीजन खान, अगर हम उसके मिज़न सीन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द सेट कंप्राइजेज ऑफ किचन, ठीक है। इसके अलावा चलो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर खान इज समथिंग जिसके अंदर मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। एथनिसिटी के हवाले से ब्रिटिशियन है, ब्रिटिश एशियन है उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स हैं, कन्वेंशनल जेंडर रोल्स, मेल वर्सेस फीमेल्स। मेल हैज शोन कि भाई द मेल वाज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, द फीमेल वाज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रोल, ठीक है। इसके अलावा एज आइडेंटिटीज़ में यंग इंडिविजुअल्स भी हैं उसके अंदर, एडल्ट्स भी हैं और एल्डरली भी हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर रिप्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स हम सेट की बात करते तो किचन का सेट लगा हुआ है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो प्रॉप्स के अंदर। प्रॉप्स में अब देखो कई मरतबा साइन एंड सिंबल भी निकलता है। लेट्स सपोज वी हैव डिस्कस दिस थिंग, उसके अंदर पिकल, जो पिकल्स थे टेबल पे रखे हुए, साउथ एशियन थे वो, एग्जैक्टली सही है। इसके अलावा प्रॉप्स में और क्या चीज़ें थी? फ्लैग्स ऑन मग, फ्लैग्स ऑन मग, न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कॉस्ट्यूम्स पे। अब देखो कॉस्ट्यूम्स में एक तरफ तो हमारे पास एक एथनिक आइडिया क्रिएट होता है, इसके अलावा एज के हवाले से भी कॉस्ट्यूम्स में रिप्रेजेंटेशन थी कि यंग लोग मोर ग्लोबलाइज थे, ठीक है। यंग इंडिविजुअल्स वर वेयरिंग मोर ग्लोबलाइज्ड ड्रेस फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग, एडल्ट वर मोर इनटू द ब्रिटिश एशियन, कंफ्यूज हैं क्या करें, यहाँ रहें या वहाँ रहें, ठीक है। ब्रेशियन, ठीक है। और एल्डरली मोर कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देयर आर सो मैनी। अच्छा इसके अलावा सेट हेयर एंड मेकअप के अंदर सिटीजन खान का हेयर एंड मेकअप, एम आई राइट, और मिस्टर खान का हेयर एंड मेकअप। अब देखो हेयर एंड मेकअप से क्या हो रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, बियर्ड दिखा रहे हैं उसकी। इसके अलावा कैप पहनी हुई है इसने। ये दोनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एथनिसिटी को। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कैमरा शॉट्स में क्या होता है, आपको मास्टर शॉट नज़र आएगा पूरी सिचुएशन को दिखाने के लिए, टू शॉट कन्वर्जेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मिड शॉट मिस्टर खान पर एम्फेसाइज करने के लिए कि भाई मिस्टर खान पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एग्जैक्टली साउंड की अगर हम बात कर सकते हैं तो हमें लाफ्टर मिलता है। लाफ्टर इज अ नॉन डायटिक साउंड जिसको फ्रेम में नजर नहीं आ रहा होता, पीछे से आ रहा होता है। व्हाट इट शोज, ये थीम को डिफाइन कर रहा है, जॉनरा डिफाइन कर रहा है कि सिटकॉम है, ठीक है। इसके अलावा डायलॉग्स हैं, ठीक है। डायलॉग्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एथनिक रिप्रेजेंटेशन भी होती हैं डायलॉग्स के अंदर कि भाई वी आर इमिग्रेंट्स और वी आर नॉट इमिग्रेंट्स। इसके अलावा एज, young people are confronting the adult individual and adult individuals are confronting the elderly one, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिटीज भी क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिट के हवाले से हम बात करें तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ होती है इसको हम कहते हैं मैच ऑन एक्शन। जब कैरेक्टर एक एक्शन को कंटिन्यू करे और कैमरे में कट लग जाए और ऐसा फील हो कि एक्शन कंटिन्यू हुआ है कट लगने के बाद, सही है, उसको हम कहते हैं मैच ऑन एक्शन। क्या कहते हैं बेटा? मैच ऑन एक्शन, सही है। इसके अलावा दो लोगों की कन्वर्सेशन दिखाते हुए शॉर्ट कट टू कट लगता है, सही है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट
रिवर्स शॉट। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपने एक कैरेक्टर को दिखाया फिर दूसरे कैरेक्टर को दिखाया, सही है, एक कैरेक्टर। अच्छा, इसी दौरान आप आई लाइन मैच करते हो। आई लाइन मैच करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा फील कराते हो एडिट के थ्रू कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को देख रहा है, दूसरा कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर को देख रहा है, ठीक है। तो दीज वर द बेसिक्स ऑफ एडिट एलिमेंट्स जो हमने इसमें से थोड़े से विजिबल थे, ठीक है। ये मैंने आपको एक आइडिया क्रिएट कर दिया कि किस तरीके से हम पहले अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है जी। अपने नोट्स बनाने के बाद अब हम जाएंगे अपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है जी। सबसे पहले पैराग्राफ स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। देखें जी, अब अगर हम बात करते हैं पैरा 1 की, ठीक है जी, मैं बात करता हूं सबसे पहले पैरा 1 की, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया टेक्स्ट। देखो, फिल्म का नाम, डायरेक्टर का नाम दिया हुआ होगा, ठीक है। डायरेक्टर नेम मेंशन करो और कोर रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करो। ठीक हो गया जी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टेक्सचुअल एनालिसिस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं complete textual analysis. The first we need to go for the introduction of media text. Now we are going to start. This media text is extracted from Citizen Khan. This media text is extracted from Citizen Khan, directed by Nick Wood. डायरेक्टर का नाम और फिल्म का नाम ऑलरेडी आपके पास एग्जाम पेपर में दिया हुआ होगा, ठीक है। एंड देन दिस मीडिया टेक्स्ट is extracted from Citizen Khan, directed by Nick Wood. The core representations of this media extract, the core representations in this media extract rotates around media extract. So the core representation In this media extract rotates around conventional gender roles and the representation of Bayesian ethnic identity and Bayesian ethnic identity. Bayesian are the people who are the British Asians, ठीक है। Bayesian ethnic identity and there are some representation of different age cohorts and there are different age representation of different age cohorts. age groups को कहते हैं बेटा, representation of different age cohorts COHORTS कहते हैं, age groups को कहते हैं बेटा, like young, adult and elderly. Yes, age groups भी लिख सकते हो, ठीक है। This is your first paragraph, okay. Now we need to go for second paragraph. So if you move towards second paragraph, देखिए, keep one thing in your mind. हम normally मैं recommend करता हूँ कि आप theory से start करें अपना second paragraph, third and fourth paragraph, ठीक है। But देखें, keep one thing in your mind. If there is no connotations and there is no linkage with the media text, there is no marks for the theory. Theory for additional support के लिए होती है कि एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको पता है, आता है सब कुछ, ठीक है। The first, we are going for the second paragraph. That is all about para number 2. That is all about, I recommend this paragraph with Stuart Hall theory.
ठीक है, इसके अंदर आप इनकोडिंग एंड डीकोडिंग की बात भी करें, ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें बात करें ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल के हवाले से। देखें, इफ देयर इज नो नैरेटिव लिंकेज कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू लिंक दिस थ्योरी विद द नैरेटिव, लिंक दिस थ्योरी विद नैरेटिव, यानी कि नैरेटिव के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू मस्ट नीड टू लिंक द थ्योरी विद द नैरेटिव रिसेप्शन मॉडल। So now we are going for para number 2. So please write. So if we move towards Stuart's Hall theory, please write it down. According to Stuart's Hall theory of encoding and decoding, media producers used to encode the media text. Through technical codes. Encode the media text through technical code. Encode the media text through technical codes, while active audience decode the media text as per their historical, cultural. Media producers used to encode the media text through technical codes, while the active audience used to decode the text as per their historical, cultural, and social background. So what I did कि हमने जो डिकोडिंग का एलिमेंट था उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल के साथ, सही है। इन दिस मीडिया एक्सट्रैक्ट नाउ आई नीड टू लिंक विद द नैरेटिव। इन दिस मीडिया एक्सट्रैक्ट there are stereotypical gender representation. There are stereotypical gender representation. Gender representation. Male with instrumental role. Male with instrumental role. Yes, male with instrumental role, and the female with domestic role, and the female with domestic role, and the female with domestic role. Okay, so the feminist audience, So the feminist audience may interpret into oppositional code while the conservatives may interpret into preferred code. While interpretatives may interpret into preferred code. Okay, so this is your paragraph number 2. Okay, now we are moving forward with paragraph number 3. First of all, I need to build a structure for you guys. This is all about para number 3. So if we talk about para number 3, go for the Ferdinand's. So in paragraph 3, we need to go for Ferdinand's
theory of semiotics. ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या करना है, एवरीवन हियर यू नीड टू आइडेंटिफाई, ये बहुत इजी वाला पैराग्राफ है, आइडेंटिफाई एनी साइन और सिंबल, identify any sign or symbol and build the connotations. Build the connotations, ठीक है.